बेटा लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देखे कि क्या एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री में होता है, दैट इज द फंडामेंटल आइडेंटिटी, देन व्हाई द एंगल्स मूव इन द एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन. Now instead of moving in the anti-clockwise direction, if it is moving in a clockwise direction तो क्या फर्क पड़ जाता है. Then after that कुछ allied angles देखे. Now what does mean this allied angle? So angle which are the multiple of 90 degree. That angles are generally called as a allied angle. And afterward we are taking some functions in a quadrant. That is, in first quadrant all the trigonometric functions are positive. In a second quadrant sine and its reciprocal positive. When we are in a third quadrant tan and its reciprocal is positive. When we are in a fourth quadrant cos and its reciprocal is positive. This is all about the sign of trigonometric function. But why? This why create the question inside our mind. कि why in the first quadrant all the trigonometric functions are positive? Why in the second quadrant only sine and its reciprocal is positive? This why? Now उसी का आंसर हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करते हैं. See, first of all, keep in the mind when we are in the quadrant. So initially x-axis and the initial ray is always along with parallel to each other, and that's why they having the 0 degree measurement. And the second ray, which is we called as a terminal ray, that terminal ray is moving from the initial ray and this anti-clockwise direction it moves and complete the one rotation. This complete rotation is of 360 degree. Last video हम लोगों ने ये देखे कि up to the 5 rotation, what are the exact measurement of that particular terminal ray. Now let's find the answer why in the quadrant that particular ratios are positive and why the remaining are the negative. So first of all we are considering a standard unit circle. अभी ये क्या है? Standard unit circle means a circle whose center is at origin. This is not new for you. You already learned the circles. And when we are saying the circle, it has a centralized point. And from the center point, there is a locus of point on the equidistant. And these equidistant points are making a figure which is generally known as a circle. So, when we are considering standard unit circle, that time circle whose center at origin and radius is 1 unit. एक बार फिर से इसको दोहराते. देखिए वो सर्कल जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में हो. अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस में इतना ही बोल के अगर रुक जाऊं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपके पास लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. दिस सर्कल आल्सो लाइज इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस. यहाँ पे सर्कल बना लूं तब भी वो कोऑर्डिनेट में है. ये ऐसे कट करके बना लूं तो भी कोऑर्डिनेट में है. मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस में का वही एक सर्कल होना है. सेंटर कहाँ पे रहने को ना? सेंटर एट ओरिजिन and radius 1 unit. ये 1 किलोमीटर रह सकता है, 1 मीटर रह सकता है, 1 सेंटीमीटर रह सकता है, बट रेडियस इज 1 यूनिट. ऐसा एक सर्कल जब हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमें पता चला कि सेंटर तो ओरिजिन पे है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 रहते हैं. इसका मतलब सेंटर के भी कोऑर्डिनेट बन गए बेटा 0,0. बात समझ में आ रही? उसके बाद मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. अभी जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड तक इस चीज के साथ फैमिलियर हो कि जब आप 4 क्वाड्रेंट में मूव हो रहे हो, आपके हर एक क्वाड्रेंट में पॉइंट के कोऑर्डिनेट का साइन ये अलग अलग है. It means if I am in the first quadrant,
कोऑर्डिनेट हैज साइन प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड, तो जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म कुछ ऐसा, इट मींस हमारा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, हालांकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। नाउ व्हेन वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म कुछ ऐसा बना। अभी इसका मतलब हुआ x y बोथ हैविंग द नेगेटिव साइन। और जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन रहता है प्लस एंड माइनस। Now if I consider any point P, you can consider any other point A, B, C, D, E, F, G. I consider a point P on the circumference of the circle. So अगर वो circumference of the circle है तो it has the coordinate x, y. ठीक है बेटा, पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जैसा एक पॉइंट हम लोगों ने ऐसा रख दिया, जैसे ही उसको छोड़ा वो एग्जैक्ट ऐसे 90 बना के हुए नीचे आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। सेम वैसा ही परपेंडिकुलर डालो फ्रॉम पॉइंट P से, कहां पे, तो ऑन एक्स एक्सिस, ये डाल दिए। फिर हमें पता है जैसे ही परपेंडिकुलर डाल के हो जाता है, जैसे ही पॉइंट ज्वाइन हो जाता है, ये जो एंगल बनाता है, ये एंगल रहता है हमारा 90 डिग्री। और टर्मिनल रे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दैट एंगल विच इज नथिंग बट द इंक्लिनेशन डिनोटिंग बाय द लेटर थीटा। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, that is initial ray always making an angle of theta with the positive x axis. So theta angle at O. M, draw a perpendicular, so PM makes a right angle triangle. So यहाँ पे बनने वाला एंगल हुआ हमारा 90 डिग्री। जैसे ही पता चला राइट एंगल ट्रायंगल बना गया, वैसे ही पाइथागोरस अपना थ्योरम लेके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस ने बोला ही है कि मैं तभी आ जाऊंगा जब भी आप मुझे 90 डिग्री के साथ बुला लो। सो यहाँ पे बेटा जैसे ही 90 बना वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगा। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वी आर गेटिंग OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। ओके, नाउ फॉर द सर्कल O से लेके तो P तक का डिस्टेंस क्या है, वो हमारे लिए रेडियस। ये हुई हमारी रेडियस, कहां से कहां तक, O से लेके तो P तक के, यानी ये क्लियर हो गया हमारा। बात बची है सिर्फ OM और PM के लिए, वो वैल्यूज अभी हमें ढूंढना पड़ेगा फिर से कोई ना कोई बेसिक रिजल्ट यूज करके, तभी तो हम लोग आगे के आइडेंटिटीज को प्रूव करके ये सोच पाएंगे कि क्यों यहाँ पे सभी पॉजिटिव, क्यों यहाँ निगेटिव, क्यों पॉजिटिव। और उसके लिए देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं OM और PM का। तो हम लोग ये सोचने वाले अभी कि ये OM और PM की लेंथ कितनी। देखिए आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये चीज को जाना है कि जब भी हम लोग कोई पॉइंट को प्लॉट कर, या आपने मेरे ख्याल से 9th में या 8th में पढ़े, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ। फिर आपके टीचर ने आपको अगर बोल दिया कि पॉइंट P 2,3, इसका मतलब हुआ आपको x एक्सिस पे 2 कदम चलना है, ,3 यानी आपको y एक्सिस पे 3 कदम चलना। और जब कोई टर्म ऐसे पैरेलल रहते ना बेटा, जैसे मैंने बोल दिया ये एक और ये दोनों एक दूसरे को जब पैरेलल जा रहे बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ये अगर 3 सेंटीमीटर कवर करा रहा तो ये भी 3 ही सेंटीमीटर है, एग्जैक्टली पैरेलल एंड सिमिलर। तो सेम कंसेप्ट बन जाता है यहाँ पे भी। अगर कोई पॉइंट हैविंग द कोऑर्डिनेट x, y, इसका मतलब वो ये जो डिस्टेंस चला है ये x डिस्टेंस चला है, और वो y एक्सिस पे जो डिस्टेंस चला है ये y है।
अभी उसको जो साइड पैरेलल रहेगी, यानी अब यहाँ पे मैंने O बोला, यहाँ पे मेरा M है, हियर हमारा पॉइंट P, यहाँ पे एक आधा और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं A। लेंथ ऑफ OM अगर X है, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ AP भी X ही हो, क्योंकि एग्जैक्ट जा रहा है। देखो ये ऐसा रखा मैंने, फिर इसको ऐसा ही लेके ऊपर जाना है, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर से मैंने स्टार्ट किया है, तो इतना ऊपर जाने के बाद ऐसे तो होता नहीं ना कि ये ऊपर जाते जाते थक गया बेचारा तो 10 का 9 वगैरह हो गया, ऐसा नहीं होगा। सो सेम, अगर ये x है तो यहाँ पे भी x ही बनेगा, ये डिस्टेंस अगर y है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस y बनेगा, क्योंकि वो ऐसे पैरेलल बराबर आ रहा। सेम इज हियर कि लेंथ ऑफ PM ये रहेगा आपका y एंड लेंथ ऑफ OM ये रहेगा आपका x। दैट इज योर फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। क्या बोला मैंने? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट and distance of a point from y-axis is a x coordinate. Y coordinate is also called as ordinate and x coordinate is called abscissa. Remember these words. That is, y coordinate is called the ordinate, whereas x coordinate is called abscissa. Get it my point? Now see beta, OM की लेंथ पता चल गई x है, फिर PM की लेंथ भी पता करा लिए y है, O से लेके P तक का डिस्टेंस तो पहले से ही पता था, वो रेडियस है भाई, रेडियस है तो तू R से डिनोट होगी। फिर हम लोगों ने पाइथागोरस को बीच में ला लिया। क्यों पाइथागोरस को बीच में लाए? बिकॉज परपेंडिकुलर निकालने के वजह से 90 डिग्री बना था, तो वहां पे पाइथागोरस आ गया। फिर पाइथागोरस ने बोला अगर मैं सेटिस्फाई करा सकता हूं तो मेरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, लिख लिए उसका स्टेटमेंट, दैट इज OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। नाउ जस्ट ऑब्जर्व द फिगर, OP having the length R, so this become R square. Then this value is equal to length of OM, OM means x, so x square plus length of PM, it's a y, but क्या हुआ? R कौन था? रेडियस। सर्कल कौन सा चल रहा था? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी रे? 1 यूनिट। So R replaced by 1, so it becomes 1 square is equal to x square plus y square. Therefore we are getting x square plus y square is equal to 1, which is a standard equation of circle. Remember for your competitive, that is x square plus y square is equal to 1. This is your standard equation of circle. Now go through the next one. My first trigonometric function is sin. क्योंकि इतनी जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग वो करी इसी के लिए रहे। So my first trigonometric function is sin, and sin theta is the ratio of opposite upon hypotenuse. तो थीटा के सामने कौन है? तो थीटा के सामने तो PM है, तो लिख लिया PM। हाइपोटेनस यानी ये जो कि राइट एंगल के सामने आती है वो हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कौन है? OP, तो अपॉन में लिखा लिया हम लोगों ने OP, पर हमारे पास तो दोनों के वैल्यूज रेडीमेड है। लेंथ ऑफ PM इज इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू R, but the value of R is equal to 1 unit, so it becomes sin theta is equal to y upon 1. कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा अपॉन में 1 रखे क्या और नहीं रखे क्या। So therefore sin theta is nothing but the 1. Its second way we are also be called y coordinate means sin theta. तो वैल्यूज डालते हैं हम लोग।
साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो अपोजिट हुआ पीएम, हाइपोटेनस हुआ ओपी. लेंथ ऑफ पीएम इज इक्वल टू वाई, लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू आर. बट as it's a standard unit circle, the value of radius r is equal to 1. So values डाले y upon 1 and y upon 1 is simply 1. Therefore क्या मिला? तो हमें मिला कि y कोऑर्डिनेट ये होता है हमारा sin थीटा. क्या रिश्ता बना लिया हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस में और ट्रिग्नोमेट्री में? तो y कोऑर्डिनेट यानी होता है sin थीटा. अभी ढूंढने चलते हैं नेक्स्ट के तरफ. Next trigonometric function is a cos theta, and cos theta is the ratio of adjacent upon hypotenuse by adjacent कोण. तो ये OP जिसकी लेंथ कितनी चल रही x लिखा लिए, अपॉन हाइपोटेनस फिर से कोण r, r की वैल्यू 1. So we are getting cos theta is equal to x. These two are your most important results of trigonometry. No doubt कि पूरी की पूरी ही trigonometry important है. The basic which are required to become a master in a trigonometry, the two most important relation is number one, y is equal to sin theta, and second, x is equal to cos theta. Now just put up these two values in your equation 1. So what is the equation 1? Equation 1 is x square plus y square is equal to 1. But x is nothing but the cos theta, so it's square, plus y is nothing but the sin theta, it's square, is equal to 1. Therefore cos square theta plus sin square theta is equal to 1. देखो इट्स मैजिक कि हम लोग जिसको 2 साल से रट रहे थे sin square theta plus cos square theta is equal to 1, वो आता कैसे? तो वो ये ऐसा इतना घूम फिर के आ जाए. हम लोग सिर्फ रेसिपी बनी कैसे, क्या इंग्रेडिएंट डाले, ये हमारे लिए मैटर ही नहीं हुआ. हमारे लिए हमारी डिश में क्या परोसा गया था उसको खाने से मतलब रखे हम लोगों ने. बट when we are preparing for the competitive examination, it is very necessary, that is how to make this particular recipe. Now recipe of sin square theta plus cos square theta is equal to 1. That is the recipe for the first fundamental identity of trigonometry is made by using the coordinate geometry where the x-axis and the y-axis, standard unit circle, all are getting together and form a first one identity, which is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now let's go to second part of this. देखो बेटा, अभी हम लोगों ने डेरिवेशन से क्या जाने कि x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है cos थीटा, y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है sin थीटा. अभी आ जाएंगे हमारे मेन टॉपिक पे कि क्यों क्वाड्रेंट वाइज रेशियोज का साइन बदलते जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. नाउ व्हेन वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ये चीज पता है कि x एंड y बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव. अभी यहां से देखना ये दो और यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करना. सो साइन थीटा का मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट. cos थीटा मींस x कोऑर्डिनेट. सो जस्ट पुट अप sin theta y coordinate, cos theta x coordinate, and tan theta, remember this thing, tan theta is nothing but the sin theta upon cos theta, and the sin theta means y and cos theta means x. Let's find the sin, S-I-G-N, sin ढूंढते हैं. y coordinate कैसा रहने वाला? पॉजिटिव. x कोऑर्डिनेट भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव. सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या? तो पॉजिटिव. देखो बेटा,
प्यार से अगर पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक में दो ही लोग स्टार्टिंग में आ गए, एक साइन आया और दूसरा कॉस, फिर ये दो बन गए पैरेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर बाकी बचे हुए सब उनके बच्चे, और साइन कॉस को माँ बाप बोल दो अकॉर्डिंगली, फिर बाकी सबको रन कर दो। साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, इसका मतलब कॉट सेक कोसेक, जो कि इसी से रिलेट करते हैं, ये भी कैसे हो गए पॉजिटिव। इट मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all the trigonometric functions are positive, and that's why in the last video we are saying first quadrant all the functions are positive. Okay, now let's have the same technique using in the second quadrant. So what exactly happened in the second quadrant? Sin theta, nothing but a y. Cos theta, it means x. Again tan theta means y upon x. Let's put the sign. Y coordinate positive, x coordinate negative, y upon x plus upon minus, and plus upon minus is minus. कौन पॉजिटिव हुआ रे सिर्फ, तो पता चल रहा कि सिर्फ साइन पॉजिटिव हुआ। अरे ये क्या हुआ अभी, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कौन, कोसेक, यानी सिर्फ दो रेशियोज पॉजिटिव होंगे इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड विच आर दे, साइन एंड द कोसेक, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, remaining all are negative. Now let's go to the third quadrant. Third quadrant, sin theta means 1, but y is negative, so negative. Now x coordinate means cos theta, cos is also negative. Tan is nothing but the sin upon cos, so negative upon negative, and we know that negative upon negative is positive. So let make the relation. Sin अगर नेगेटिव है तो कोसेक नेगेटिव, खत्म कहानी। कॉस नेगेटिव तो सेक नेगेटिव, ये भी चला गया, बचा कौन, टैन। फिर टैन के साथ आने वाला उसका भाई कौन, तो कॉट। तो कौन लोग दो यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, टैन थीटा एंड रेसिप्रोकल कॉट थीटा। These two are only positive in the third quadrant. Now let's go to the last quadrant, that is the fourth quadrant, where again sin theta means y, cos theta means x, but in the fourth quadrant y coordinate is negative, x coordinate is positive, and y upon x means minus upon plus. ये क्या हो गया, माइनस अपॉन प्लस, फिर से क्या बन गया बेटा, माइनस। सिर्फ कौन नजर आ रहा पॉजिटिव करके, सिर्फ कॉस नजर आ रहा पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा सेक थीटा इज पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई इन द लास्ट वीडियो आई एम सेइंग दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में शुगर को ऐड करो, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जस्ट रिकॉल, सिर्फ इतना याद करो कि वो स्टार्टिंग अल्फाबेट से कौन सा फंक्शन शुरू हो। A स्टैंड फॉर ऑल, S स्टैंड फॉर साइन, T स्टैंड फॉर टैन, C स्टैंड फॉर cos, and that's why this happened, that is in the first quadrant sin function positive, second quadrant sin cos positive, third quadrant tan, and in the fourth quadrant cos. This is all about the sign of trigonometric ratios. If you want, you can take the screenshot of this also, and remember this for the next 2 years. उससे भी आगे इंजीनियरिंग में जाओगे तो
आपको और 2 साल ये सभी चीजों को ध्यान में रखना। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। थैंक यू।